बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम आपकी सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की। तो सेकंड टर्म में सबसे पहला टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। उसका टाइटल ये है टेक्स्ट बुक का इंग्लिश 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की ये किताब है। और हमारी जो सेकंड टर्म है वो स्टार्ट हो रही है लेसन नंबर 9 से। लेसन नंबर 9 है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। इसका पेज नंबर है 106, पेज नंबर 106, यूनिट नंबर 9, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। सही पेशे का इंतखाब करना, सही पेशे को चुनना या दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना या दुरुस्त पेशे को चुनना। दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना या दुरुस्त पेशे को चुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपको इनके मानी बताए जाएंगे। देन लास्टली फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको समझाई जाएगी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन की जाएगी। पेज नंबर है 107, सफ़ा नंबर है 107, पैसेज नंबर 1 है। यूनिट का नाम है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना। इंग्लिश रीडिंग सबसे पहले करेंगे। देयर वॉज अ टाइम when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. Passage number 2 है Today life has become more dynamic and innovative. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designings are available for young people. Passage number 3 है बेटा However, there still remains the question of choosing the right profession. Unfortunately for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. For example, a decade बोलते हैं 10 साल का अशरा जो होता है 10 साल। A decade ago, when computer science professionals were in demand, masses of MCS, most of computer sciences students flooded the market with extremely disappointing results. ये बेटा हमने इसके 4 जो पैसेजेस किए हैं लेसन नंबर 9 के, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 एंड पैसेज 4। अभी हम आपको इसके इन चारों के वर्ड्स मीनिंग बताएंगे, देन लास्टली इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे।
क्लास 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्स्ट, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। राइट कैरियर, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना। कैरियर का इंतखाब करना। और बेटा मैं बता दूं, ये आपका अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, सेकंड टर्म का ये पहला लेसन है इंग्लिश, जो कि 10th क्लास की है। अब हम सबसे पहले इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताएंगे। पैसेज नंबर 1 है। ये वर्ड्स मीनिंग जो होंगे पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, यूनिट नंबर 9 है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशा का इंतखाब करना। इसका पैसेज नंबर 5 है। इसकी इंग्लिश रीडिंग सबसे पहले हम करेंगे। Career counselors are generally well informed about such trends. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. This highlights the importance of a full-time career counseling department at school level. The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interest and to suggest suitable careers according to their aptitude. According to their aptitude, most of the parents and students find themselves in a fix. In a fix एक idiom है, इसका मानी होता है अपने आप को मुश्किल में पाना, अपने आप को उलझन में पाना। In a fix when deciding on a career. Parents are unaware of market trends, educational systems, and the scope of any particular discipline. Similarly, 14 or 15 years old students are not mature enough to make such life-changing decisions. So, it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. Passage number 6 है, once a field has been selected, the next step is to enter that particular field, which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. Passage number 7 है बेटा, following is a brief introduction to various career choices. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. अब इन जो 3 पैराग्राफ हैं, पैसेज नंबर 5, 6 और 7, इसके हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। यूनिट नंबर है बेटा 9, यूनिट नंबर 9
क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टेक्स्ट। यूनिट नंबर 9 जो टॉपिक है हमारा selecting the right carrier, selecting the right carrier, दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना। अभी बेटा हम पैसेज नंबर 5, 6 एंड 7 के जो वर्ड्स मीनिंग है उनको अंडरस्टैंड करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स। ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में, ये वर्ड्स मीनिंग में नंबर है 21। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, यूनिट नंबर 9 है, क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश यानी टेक्स्ट में से, टॉपिक है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशा का, दुरुस्त शोबा का, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना। पैसेज नंबर 5, 6 एंड 7 के बेटा अभी वर्ड्स मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करवाने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है काउंसलर्स। ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में नंबर 21 है COUNSELORS, काउंसलर्स। इट मीन्स मुशीर। नंबर 22 है डिसाइडिंग, फैसला करते हुए, DECIDING, फैसला करते हुए। नंबर 23 है सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट मैंने होता है तजवीज़ करना। नंबर 24 है एप्टीट्यूड, बोलते हैं रुझान को, APTITUDE, रुझान। रिवॉर्डिंग, REWARDING, इट मीन्स होता है सिला देने वाले। नंबर 26 है प्रमोट, तरक्की देना, PROMOTE, प्रमोट मैंने तरक्की देना। सेलेक्ट मैंने इंतखाब करना, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट मैंने इंतखाब करना। चुनना भी होता है बेटा इसका मानी, मुंतखब करना भी होता है। नंबर 28 है कंसल्ट, CONSULT, मशवरा करना। नंबर 29 है कोर्सेज, COURSES, कोर्सेज का मानी होता है नसाब या कोर्सेज। नंबर 30 है
introduction, introduction, इंट्रोडक्शन बोलते हैं तारुफ को। नंबर 31 है कंडक्ट, मुनक्कद करना, CONDUCT, कंडक्ट, मुनक्कद करना। नंबर 32 है सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं हासिल या नतीजा, आउटकम नतीजा या हासिल। नंबर 33 है एक्सपर्ट्स, EXPERTS, माहिरीन। नंबर 34 एंड लास्टली नंबर 35, 34 है माइंड्स, अजहान। नंबर 35 है फॉलो, FOLLOW, पैरवी करना। फॉलो मीन्स पैरवी करना। अब दोबारा से इसके पूरे वर्ड्स मीनिंग हम रीडिंग करेंगे। बेटा यूनिट नंबर 9 है, क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट को हम ये पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हमारा सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त शोबा का, दुरुस्त पेशा का, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना। पैसेज नंबर 5, 6 एंड 7 के वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड मीनिंग, ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में नंबर 21 है हमारे पास। काउंसलर्स बोलते हैं मशीर, मशवरा देने वाले। डिसाइडिंग होता है फैसला करते हुए। सजेस्ट, तजवीज़ करना। एप्टीट्यूड बोलते हैं रुझान को। रिवार्डिंग बोलते हैं सिला देने वाले। प्रमोट बोलते हैं तरक्की देना। सिलेक्ट, चुनना या इंतखाब करना। कंसल्ट होता है मशवरा करना। कोर्सेज बोलते हैं कोर्सेज या निसाब को। इंट्रोडक्शन बोलते हैं तारुफ को। कंडक्ट बोलते हैं मुनक्कद करना। आउटकम बोलते हैं नतीजा या हासिल। एक्सपर्ट्स, प्रमोट बोलते हैं तरक्की देना। सिलेक्ट का मानी होता है चुनना या इंतखाब करना। कंसल्ट का मानी होता है मशवरा करना। कोर्सेज या नसाब। इंट्रोडक्शन बोलते हैं तारुफ को। कंडक्ट बोलते हैं मुनक्कद करना। आउटकम बोलते हैं नतीजा या हासिल, एक्सपर्ट्स, आउटकम बोलते हैं नतीजा या हासिल। एक्सपर्ट्स बोलते हैं माहिरीन को। माइंड्स बोलते हैं अजहान को, ये ज़ेन की जमा है अजहान को। फॉलो बोलते हैं पैरवी करना यानी पीछा करना। अब हम इसके उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इन तीनों पैसेजेस की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 9 है, पेज नंबर 108 है और पैसेज नंबर 5 है। Career counselors are generally well informed about such trends. कैरियर काउंसलर्स इस तरह के रुझानों से उमूमन बाखबर होते हैं। They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. वो नफ़ा बख्श कारोबार की तरफ रहनुमाई करने के सिलसिला में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। This highlights the importance of a full-time career counseling department at school level. इससे स्कूल की सतह पर कुल वक्ती कैरियर प्लानिंग के शोबा की अहमियत वाज़ेह होती है। The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests,
and to suggest suitable career according to their aptitude. इस शोबा का काम होना चाहिए कि ये तालिब इल्मों की शख्सियतों का जायज़ा ले, इनकी दिलचस्पियों का मुशाहदा करे और इनका तज्ज़िया करे और इनके फितरी रुझान के मुताबिक मौजू पेशे तजवीज़ करे. Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. कैरियर का फैसला करते वक्त ज़्यादातर वालिदैन और तालिब इल्म खुद को बेबस पाते हैं. Parents are unaware of market trends, educational systems and the scope of any particular discipline. वालिदैन मार्केट के रुझान, तलीमी निज़ामों और किसी खास शोबा की वुसअत मीन्स होता है अहमियत से लाइल्म होते हैं. Similarly, 14 or 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. बिल्कुल इसी तरह 14-15 साल की उम्र के जो तालिब इल्म हैं इस कदर बालिग नज़र नहीं होते कि ज़िंदगी बदल देने वाले फैसले कर सकें. So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. इसलिए इस बात को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग यानी शोबा काउंसलिंग का आगाज किया जाए. इसके बाद बेटा पैसेज नंबर 6 and 7 है. पैसेज नंबर 6 है, once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. जब कोई शोबा मुंतखब कर लिया जाए, जब किसी शोबा का इंतखाब कर लिया जाए तो अगला मरहला इस खास शोबा में दाखिल होने का होता है. Which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for. कौन सी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज और मज़ामीन मुंतखब किए जाएं. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. एक तालिब इल्म को चाहिए कि इस महसूस शोबा के कामयाब तालिब इल्मों और पेशावर माहिर से भी फ़ायदा हासिल करे या इस्तिफ़ादा हासिल करे. नेक्स्ट पैसेज नंबर 7 है बेटा. Following is a brief introduction to various career choices. मुख्तलिफ काबिल इंतखाब पेशों का मुख्तसर सा तारफ़ दर्ज झैल है. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. ये एक सर्वे का हासिल है या एक सर्वे का नतीजा है जो कि सीनियर तालिब इल्मों और पेशावर माहिर के दरमियान ये जानने के लिए किया गया था कि इनकी मुंतखब शुदा शोबा के लिए मौजूद तरीन राय अमल कौन सी है. अब बेटा पैसेज नंबर जो 8 है उसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे. पैसेज नंबर 8 है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर. चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, undoubtedly one of the toughest and most highly paid professional, may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. However, according to experts, 12th grade with the business subjects like accountancy, business, statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. The business studies and IT information means होता है information technology. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज नंबर 109 है. पैसेज नंबर 8 का रिमेनिंग पार्ट.
IT means information technology. Fields also confuse young minds with a wide range of सब डिसिप्लाइंस MBA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, MBIT की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस. Master of Computer Sciences should ideally be followed by BCom. BCom means Bachelor of Commerce, BBA, Bachelor of Business Administrations, BBIT, Bachelor of Business and Information Technology, and BCS, Bachelor of Computer Sciences. पैसेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं. पैसेज नंबर 9 है, the engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering, a great opportunity in agriculture. Discipline has also been developed for pre-engineering students. पैसेज नंबर 10 है बेटा, पैसेज नंबर 10 है, mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. This field is highly rewarding in terms of both respect and money. Unlike other disciplines, mass communication does not require a particular line of study. You may join this field after completing your BA, BCom or BSc, etc. Fashion and designing have now emerged as a separate university. Fashion and designing have now emerged as a separate industry. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. Passage number last one है, means कि passage number 11 है. So before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career but also mental peace and satisfactions. It is the only way to lead a hassle-free professional life. Hassle-free professional life. बेटा अब हम इसके words meaning देखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 10th. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश टेक्स्ट इनफैक्ट. यूनिट नंबर है 9. Selecting the right career. Selecting the right career. Selecting the right career. दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना, दुरुस्त शोबा को चुनना. बेटा पैसेज नंबर 8, 9, 10 एंड 11 के बेटा वर्ड्स मीनिंग है. वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग है. ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग जो लेसन का ये 36 है नंबर.
इक्विवेलेंट बोलते हैं मसावी या बराबर, EQUIVALENT बराबर या मसावी। नंबर 37 है एक्सपर्ट्स, EXPERTS एक्सपर्ट्स बोलते हैं माहरीन को। नंबर 38 है स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS इसको बोलते हैं शुमारियात। नंबर 39 है टफेस्ट, TOUGHEST मुश्किल तरीन बोलते हैं इसे, टफेस्ट मुश्किल तरीन। नंबर 40 है कंफ्यूज, इट मीन्स होता है कंफ्यूज, परेशान करना, CONFUSE परेशान करना। नंबर 41 है रेंज, रेंज बोलते हैं वुसत को, RANGE रेंज वुसत। नंबर 42 है आइडियली, IDEALLY मिसाली, आइडियली मिसाली। जियोग्राफी बोलते हैं जियोग्राफिया, जियो हाइफन ग्राफी GRAPHY जियोग्राफी बोलते हैं जियोग्राफिया। नंबर 44 है कॉन्सेप्ट्स, CONCEPTS कॉन्सेप्ट बोलते हैं तस्वरात को। 45 वर्ड्स मीनिंग में नंबर है। एरियाज, AREAS एरियाज बोलते हैं शोबाजात को। 46 नंबर है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौका को, अपॉर्चुनिटी मौका। डिसिप्लिन बोलते हैं DISCIP, डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं इसको, डिसिप्लिन भी बोलते हैं DISCIPLINE डिसिप्लिन, ज़ाब्ता या शोबा, ज़ाब्ता या शोबा। नंबर 48 है फास्टेस्ट, FASTEST फास्टेस्ट तेज तरीन। 49 है अनलाइक, बरक्स। 50 है नंबर 50 है सेपरेट, SEPARATE सेपरेट बोलते हैं अलग या अलहदा। नंबर 51 एंड लास्टली नंबर 52 पीस, अमन, सुकून। पीस, अमन या सुकून। पीस, अमन या सुकून। हैसल, HASS
ALE, हैसल बोलते हैं परेशान, हैसल परेशान। ये बेटा इसके लेसन नंबर 9 सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, इसके जो वर्ड्स मीनिंग थे ये आपके मुकम्मल हो गए हैं। अब हम शुरू से इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर, शुरू से इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करेंगे। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना या चुनना। पैसेज नंबर 8, 9 एंड 10 के बेटा वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग नंबर 36, ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में नंबर 36 है। इक्विवेलेंट बोलते हैं बराबर या मसावी, एक्सपर्ट्स बोलते हैं माहरीन को, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं शुमारियात, टफेस्ट मुश्किल तरीन, कंफ्यूज परेशान करना, रेंज वसत, आइडियली बोलते हैं मिसाली, जियोग्राफी बोलते हैं जोग्राफिया, कॉन्सेप्ट तसव्वुरात, एरियाज शोबाजात। नंबर 41 से दोबारा देखें। रेंज बोलते हैं वसत को, आइडियली बोलते हैं मिसाली को, जियोग्राफी जोग्राफिया, कॉन्सेप्ट्स तसव्वुरात, एरियाज शोबाजात, अपॉर्चुनिटी मौका, डिसिप्लिन बोलते हैं ज़ाब्ता या शोबा, फास्टेस्ट बोलते हैं तेज तरीन को, फास्टेस्ट तेज तरीन, अनलाइक बरक्स, सेपरेट अलग, अलहदा या जुदा, पीस अमन या सुकून। लास्टली है हैसल बोलते हैं परेशान को। ये इसके वर्ड्स मीनिंग भी मुकम्मल हो गए। अब उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। जो लास्ट इसके पैराग्राफ रह गए हैं, पैसेज नंबर 8, 9, 10 एंड 11। पेज नंबर है बेटा 108, पेज नंबर है 108, पैसेज नंबर है हमारा 8। चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA undoubtedly one of the toughest and most highly paid professionals. Chartered accountancy CA undoubtedly one of the toughest and most highly paid professionals may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. इंटरमीडिएट या इसके मसावी सतह की तालीम मुकम्मल करने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA की तालीम शुरू की जा सकती है। However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श पेशा में से है। दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर 8 है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA undoubtedly one of the toughest and most highly paid professional may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. इंटरमीडिएट या इसके मसावी सतह की तालीम मुकम्मल करने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA की तालीम शुरू की जा सकती है, जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श पेशों में से एक है। However, according to experts,
ताहम माहरीन के मुताबिक 12th grade with the business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. ताहम माहरीन के मुताबिक कारोबारी शोबा से मुतल्लिक़ मज़ामीन मसलन अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह के साथ इंटरमीडिएट की सतह की तालीम से इंटरमीडिएट की तालीम CA की तालीम का बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि इस तरह से सोच समझ की तमीर में मदद मिलती है। The business studies and IT information technology fields also the business studies and IT कारोबार की तालीम and IT information technology यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम। नेक्स्ट पेज पे बेटा आते हैं। पैसेज नंबर 8 का रिमेनिंग पार्ट है। द बिजनेस स्टडीज एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. Business or IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वसी ज़ैली शोबाजात की वजह से नौजवान परेशान हो जाते हैं। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT मास्टर ऑफ साइंसेज इन information technology and MSc Master of Computer Sciences should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business and Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences. BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business and Information Technology और BSc Bachelor of Computer Sciences की तालीम के बाद MBA Master of Business Administration, MBIT Master in Business and Information Technology और MSc Master of Computer Sciences की तालीम हासिल करना बहुत खूब रहेगा। अब पैसेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 9 है, पैसेज नंबर 9 The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering. इंजीनियरिंग के शोबा में नए शोबाजात मसलन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मुतारफ़ कराए गए हैं। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. Pre-engineering के शोबा के स्टूडेंट्स के लिए ज़राई शोबा में एक नया ज़ाब्ता मुतारफ़ कराया गया है। पैसेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 10 Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication यकीनन दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई सनतों में से एक है। This field is highly rewarding in terms of both respect and money. इस शोबा में इज्जत और एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा सिला मिलता है। Unlike other disciplines,
दूसरे शोबाजात के बरक्स mass communication does not require a particular line of study. mass communication में महसूस शोबा की तालीम की ज़रूरत नहीं होती. You may join this field after completing your BA, BCom और BSc etc. आप BA, BCom या BSc वगैरह की तालीम मुकम्मल करने के बाद ये शोबा अख्तियार कर सकते हैं. Fashion and designing have now emerged as a separate industry. यूनिवर्सिटियों के फैशन और डिज़ाइनिंग के शोबाजात अब अलग सनत की शक्ल से उभरे हैं. A number of universities are offering degree program and diplomas in fashion designing. बहुत सी यूनिवर्सिटियां फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमाजात पेश कर रही हैं. आखिरी पैसेज है, पैसेज नंबर 11 है. पैसेज नंबर 11 है. सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी कैरियर, इसलिए किसी भी पेशा में फैसला करते हुए मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर कैरियर बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन. इसलिए किसी भी पेशा के बारे में फैसला करते हुए यकीनी बना लें कि आप अपने पेशा से न सिर्फ रुपया पैसा कमाएंगे बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करेंगे. इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ. ये परेशानियों से खाली पेशा वाराना ज़िंदगी गुजारने का सिर्फ यही एक रास्ता है. ये बेटा आपकी जो लेसन नंबर यूनिट नंबर 9 है, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, यानी सही पेशा का इंतखाब करना, उसकी आपकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है. पहले आपको इसकी इंग्लिश रीडिंग कराई गई है, उसके बाद इसके वर्ड्स मीनिंग आपको अंडरस्टैंड कराई गई है, लास्टली उर्दू ट्रांसलेशन इसकी की गई है. अब हम इंशाल्लाह इसके अब क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 10th इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 9 सिलेक्टिंग द राइट कैरियर. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करेंगे. यूनिट नंबर, क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है हमारा बेटा इंग्लिश, इंग्लिश टेक्स्ट. यूनिट नंबर है 9 सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर. दुरुस्त शुबा का इंतखाब करना, दुरुस्त शुबा को चुनना. क्वेश्चन आंसर है बेटा. और आपको ये बता दें कि ये बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे. टोटल आपको 8 आएंगे. 8 में से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा. तो ये टोटल 10 नंबर के आएंगे. आपको इसके मार्क्स 10 होंगे. सो स्टार्ट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग questions. Answer the following questions. Question number 1 है, what were some famous careers for the young people in the past? What were some famous careers? Question number 1 है, what were some famous careers for the young people in the past? For the young people
in the past. इसका आंसर होगा बेटा, पहला क्वेश्चन है what were some careers for the young people in the past? What were some famous careers? What were the some famous 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 careers for the young people in the past? माजी में नौजवानों के चंद मशहूर पेशे कौन से थे? माजी में नौजवानों के कुछ मशहूर और मरूफ पेशे कौन से थे? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा पढ़ते हैं. What were some famous careers for the young people in the past? माजी में नौजवानों के चंद मशहूर पेशे कौन से थे? Becoming a doctor, BECOMING, becoming a doctor, DOCTOR, a pilot, PILOT, or an engineer, ENGINEER, engineer were famous carriers, CAREERS, carriers for the young people in the past. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया हमारा. इसका आंसर पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट और एन इंजीनियर वर फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट. माजी में डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना नौजवानों के मशहूर पेशे थे. माजी में डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनना नौजवानों के मशहूर व मरूफ पेशे थे. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2, nowadays non-traditional careers are more appealing to the young minds. Why? आजकल नौजवानों के नज़दीक गैर रवायती पेशे ज़्यादा दिलचस्प हैं. क्यों? आजकल नौजवानों के नज़दीक गैर रवायती पेशे ज़्यादा दिलचस्प हैं. क्यों? Nowadays non-traditional TRADITIONAL non-traditional careers, CAREERS, non-traditional careers are more appealing, APPEALING, appealing to the young minds, आजकल नौजवानों के नज़दीक गैर रवायती पेशे ज़्यादा दिलचस्प हैं. क्यों? तो इसका आंसर होगा nowadays non-traditional careers are more appealing to the young minds because nowadays non-traditional careers are more appealing, APPEALING,
to the young minds, because these careers are more rewarding, rewarding in terms of both respect and money, MONEY, both respect and money. इसके आंसर को दोबारा से पढ़ते हैं. Nowadays, non-traditional careers are more appealing to the young minds because these careers are more rewarding in terms of both respect and money. आजकल गैर रवायती पेशे नौजवानों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये पेशे इज्जत और एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से तसल्ली बख्श हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, what is meant by the right profession? What is meant by right profession? PROFESSION. What is meant by right profession? दुरुस्त पेशा से क्या मुराद है? तो इसका आंसर होगा right profession means right, RIGHT, profession PROFESSION. right profession means a rewarding profession, rewarding rewarding profession, PROFESSION, rewarding profession that provides PROVIDES, that provides respect, 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 money, 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 and AND, mental satisfaction, SATIS, FACTION, mental satisfaction. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया. इसकी रीडिंग करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय राइट प्रोफेशन? दुरुस्त पेशा से क्या मुराद है? राइट प्रोफेशन मींस अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन. दुरुस्त पेशा से मुराद एक तसल्ली बख्श या मुनाफा बख्श पेशा है. दैट प्रोवाइड्स रिस्पेक्ट, मनी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, जिससे इज्जत एहतराम, दौलत और ज़हनी इत्मीनान हासिल होता है. अब बेटा अब शुरू से हम इसके क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करेंगे. क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट है, यूनिट नंबर 9 है, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशा का इंतखाब करना. बेटा ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि बोर्ड के पेपर में ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको ये 10 नंबर के आएंगे. बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आंसर जो है वो 10 नंबर के आएंगे. बोर्ड के पेपर में ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 10 नंबर के आएंगे. और टोटल क्वेश्चन आंसर जो है वो 8 आएंगे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन आंसर जो है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है, what were the some famous careers for the young people in the past?
माजी में नौजवानों के चंद मशहूर और मरूफ पेशे कौन से थे? इसका आंसर है बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट और एन इंजीनियर वर फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। माजी में डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना नौजवानों के मशहूर और मरूफ पेशे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है नाउअडेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स आर मोर अपीलिंग टू द यंग माइंड्स। आजकल नौजवानों के नजदीक गैर रवायती पेशे ज्यादा दिलचस्प हैं, क्यों? Nowadays, non-traditional careers are more appealing to the young minds because these careers are more rewarding in terms of both respect and money. आजकल गैर रवायती पेशे जो हैं नौजवानों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये पेशे इज्जत और एहतराम और रुपये पैसे दोनों लिहाज से तसल्ली बख्श हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है What is meant by right profession? दुरुस्त पेशा से क्या मुराद है? Right profession means a rewarding profession that provides respect, money and mental satisfaction. दुरुस्त पेशा से मुराद ऐसा तसल्ली बख्श, मुनाफा बख्श पेशा है जिससे इज्जत एहतराम, दौलत और ज़हनी इत्मीनान हासिल होता है, जिससे इज्जत एहतराम, दौलत और ज़हनी इत्मीनान हासिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यूनिट नंबर 9, क्लास है 10th, टेक्स्ट selecting the right career, दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना, दुरुस्त शोबा को चुनना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, why is it important to consider the scope of any field? Why is it important to consider, CONSIDER, consider the scope of any field, FIELD? इसका आंसर होगा किसी शोबा की अहमियत, कदर कीमत का तयन क्यों करना ज़रूरी है? किसी शोबा की अहमियत या कदर कीमत का तयन करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है बेटा, वी नॉट ओनली अर्न मनी फ्रॉम आवर कैरियर, वी नॉट ओनली earn money from our career, CAREER, but also mental, we not only earn money from our career but also mental peace and satisfactions, peace and SATIS FACTIONS
TION certifications. So it is important to consider the scope. So it is important to consider the scope of any field before choosing a career. Before choosing a career, CHOOSING a career, CAREER. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम. Why is it important to consider the scope of any field? Why is it important to consider the scope of any field? किसी शोबा की अहमियत, कदर कीमत का तयन क्यों करना ज़रूरी होता है? इसका आंसर है We not only earn money from our career, हम अपने शोबा से ना सिर्फ दौलत कमाते हैं, बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, बल्कि इसके साथ साथ ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करते हैं. सो इट इज़ important to consider the scope of any field before choosing a career. इसलिए ज़रूरी है कि हर पेशा के इंतखाब से पहले इस शोबा की अहमियत का जायज़ा लिया जाए. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? Is there any need of proper career counseling, COUNSELING counseling department, DEPARTMENT department? Why? इसका आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन को दोबारा से रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की. इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? क्या कैरियर के बारे में मशावरत के शोबा की कोई ज़रूरत है? क्यों? आ कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, कैरियर काउंसलिंग COUNSELING कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, DEPARTMENT डिपार्टमेंट. A career counseling department helps students to select suitable careers, SELECT, suitable, SUITABLE, careers, suitable careers after determining their personalities, DETERMINING their personalities, PERSONALITIES personalities, and observing observing their interest,
So it is the need of every school and student. So it is the need, so it is the need of every school and student ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? क्या कैरियर के बारे में मशावरत की शोबा में कोई जरूरत है, क्यों? इसका आंसर है, कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू select suitable careers after determining their personalities and observing their interest. So it is the need of every school and student. कैरियर काउंसलिंग का शोबा स्टूडेंट्स की शख्सियत का जायजा लेने, उनकी दिलचस्पियों का मुशाहदा करने के बारे में बहुत और पेशों का इंतखाब करने में बहुत मदद देता है, इसलिए ये हर स्कूल और स्टूडेंट की ज़रूरत है। अब शुरू से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की दोबारा से रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 9 है, क्लास 10th, टेक्स्ट, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालत के जवाब दीजिए। और मैं बेटा बता दूं, ये बोर्ड के पेपर में हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर पर मुश्किल होगा। टोटल 8 आएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड? किसी शोबा की अहमियत, कदर कीमत का तयन करना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा, we not only earn money from our career but also mental peace and satisfaction. हम अपने शोबा से ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी पाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड बिफोर चूजिंग अ कैरियर। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि पेशा के इंतखाब से पहले इस शोबा की अहमियत का जायज़ा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? क्या कैरियर के बारे में मशावरत की शोबा में किसी की ज़रूरत है, क्यों? अ कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट हेल्प स्टूडेंट्स, कैरियर काउंसलिंग जो शोबा है वो तालिब इल्मों की मदद करता है टू सेलेक्ट सूटेबल कैरियर्स फॉर डिटरमिनिंग देयर पर्सनैलिटीज, ताकि वो मुनासिब कैरियर का इंतखाब करें और अपनी शख्सियतों में नुमाया नखार पैदा करें। एंड ऑब्जर्विंग देयर इंटरेस्ट, और उनके मफादात के लिए जो अच्छा हो। सो इट इज़ द नीड ऑफ एवरी स्कूल एंड स्टूडेंट। लिहाजा ये हर एक स्कूल और तालिब इल्म की एक ज़रूरत बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th यूनिट नंबर 9 है, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 अब हम अटेम्प्ट करेंगे। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टेक्स्ट, यूनिट नंबर है यूनिट नंबर 9, selecting the right career means दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना, दुरुस्त शोबा को चुनना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 6, सवाल नंबर 6 है जो भी हम अटेम्प्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल, हाउ कैरियर काउंसलर COUNSELORS help the young people कैरियर काउंसलर किस तरह नौजवान अफराद की मदद कर सकते हैं? इसका आंसर है, कैरियर काउंसलर किस तरह नौजवान लोगों की मदद कर सकते हैं? इसका आंसर है बेटा, कैरियर काउंसलर कैन हेल्प द यंग पीपल, कैरियर counselors COUNSELORS can help the young people to select suitable careers, to select SUITABLE suitable careers, to select suitable careers after determining determining their personalities, their personalities personalities, and observing observing and analyzing their interest and analyzing analyzing their interest interest, analyzing their interest। दोबारा से क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैरियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल, हाउ कैरियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल, कैरियर काउंसलर्स किस तरह नौजवान अफराद की मदद कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, कैरियर काउंसलर्स कैन हेल्प द यंग पीपल टू सेलेक्ट सुटेबल कैरियर्स आफ्टर डिटरमिनिंग देयर पर्सनैलिटीज एंड ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग देयर इंटरेस्ट। दोबारा से देखते हैं, कैरियर काउंसलर्स कैन हेल्प the young people to select suitable careers after determining their personalities and observing and analyzing their interests। कैरियर काउंसलर नौजवानों की शख्सियत का जायजा लेने और इनकी दिलचस्पियों का मुशाहदा और तज्जिया करने के बाद मौजू पेशों के इंतखाब में इनकी मदद कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कैरियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, which career do you want to opt for, which career do you want to opt for, give reason, give reason। आप कौन सा पेशा का इंतखाब करना चाहते हैं उसकी वजह भी बयान करें। द प्रोफेशन ऑफ CA एंड MBIT हैव इंटरेस्टेड मी मोस्ट, द प्रोफेशन PROFESSION, द प्रोफेशन ऑफ CA and
MBA IT and MBA IT have interested me most, have interested me most, because these are highly respected and paid profession, because these are highly respected and paid professions, PROFESSIONS professions। कि बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्लास है 10th इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है, सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशा या दुरुस्त शोबा का इंतखाब करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालत के जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल। कैरियर काउंसलर जो है किस तरह नौजवान अफराद की मदद कर सकते हैं। इसका आंसर है, कैरियर काउंसलर्स कैन हेल्प द यंग पीपल टू सेलेक्ट suitable careers after determining their personalities and observing and analyzing their interests। कैरियर काउंसलर नौजवानों की शख्सियत का जायज़ा लेने और इनकी दिलचस्पियों का मुशाहदा और तजिया करने के बाद मौजू पेशों के इंतखाब में इनकी मदद कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच कैरियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, गिव रीज़न। आप कौन से पेशे का इंतखाब करना चाहते हैं, उसकी वजूहात बयान करें। तो इसका आंसर है, द प्रोफेशन ऑफ CA एंड MBA IT हैव इंटरेस्टेड मी द मोस्ट। CA और MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है, बिकॉज दीज आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड पेड प्रोफेशंस, क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और मुनाफा बख्श पेशे हैं। बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 9 यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, उसके क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 10th यूनिट नंबर 9 है। इसकी एक्सरसाइज में डी पार्ट है इसका, गिव अ नेम ऑफ टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस। जो अफराद इसमें दिए गए हैं इनमें से हर एक का नाम बताइए। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, एक ऐसा शख्स जो अखबार के लिए रिपोर्ट मरतब करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं। न्यूज़ NEWS हाइफन रिपोर्टर REPORTER न्यूज़ रिपोर्टर। उसके बाद नंबर 2 है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कॉन्सर्ट, उसे क्या बोलते हैं, स्टेज सेक्रेटरी। एक ऐसा शख्स जो किसी तकरीब में फनकारों का तारफ़ कराता है उसे बोलते हैं स्टेज STAGE सेक्रेटरी। SECRETARY स्टेज सेक्रेटरी बोलते हैं इसको। नंबर 3 है, अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, ऐसा शख्स जो किसी स्कूल का चार्ज संभालता है उसे क्या बोलते हैं, हेडमास्टर। हेडमास्टर HEAD हेडमास्टर MASTER हेडमास्टर बोलते हैं। नंबर 4 है, अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, एक ऐसा शख्स जो अदालत में गवाही देता है उसे बोलते हैं विटनेस। विटनेस WITNESS। अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज़, ऐसा शख्स जो बूट और जूते मरम्मत करता है उसे कबलर बोलते हैं। COBBLER कबलर यानी मोची। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा शख्स जो पौधों के इल्म में महारत रखता है उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट बोलते हैं, बोटानिस्ट बोलते हैं, BOTA, बोटानिस्ट NIST। लास्ट वन है अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, एक ऐसा शख्स जो इमारत का डिज़ाइन बनाता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, ARCHITECT, आर्किटेक्ट बोलते हैं इसे। अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 1112 है, इसका ए पार्ट है पिक आउट द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस। फिक्रे के अंदर से आपने नाउन क्लॉज जो है ना उसको चुनना है, फिक्रे के अंदर से आपने नाउन क्लॉज को लेना है। आई ऑफन वॉन्डर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, आई ऑफन वॉन्डर हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो इसमें हाउ आर यू गेटिंग ऑन जो है, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये नाउन क्लॉज है। पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस, हर फिक्रे के अंदर आपने नाउन क्लॉज का उसको पिक करना है। नंबर 2 है शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, तो ये आएगा दैट शी वुड कम, दैट शी वुड कम। नंबर 3 है आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, तो आएगा व्हाट हैड हैपेंड, नाउन क्लॉज आ जाएगा। नंबर 4 में ही नोटिस दैट द क्लॉक had stopped, he noticed that the clock had stopped, that the clock had stopped। Last one है he could not decide whom he should address first, तो ये आएगा he could not decide whom he should address first, he could not decide whom she should address first। एक्सरसाइज में आपका लास्ट पार्ट है बेटा, पेज नंबर 119 पे इसका सी पार्ट है, यूज सिंस और फॉर टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस, इन फिक्रों को मुकम्मल करने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल कीजिए। आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स, ठीक है, सिंस जो भी बेटा नाम होगा उसके साथ सिंस आएगा, जो तादाद होगा तादाद होगी उसके साथ फॉर आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स, जैसे आवर्स है तो उसके साथ आवर्स के साथ फॉर आएगा, तो यहाँ फॉर। I have been watching TV dash 7 PM, तो ये आएगा since 7 PM, since 7 PM। ताहिर has not been feeling well dash 2 weeks, अब देखें तादाद है for 2 weeks आ जाएगा। Sarah hasn't been visiting us dash March, ये भी नाम है तो ये since आ जाएगा, SINCE। दोबारा से बता देता हूँ, जो जो since होगा वो नाम के लिए यूज़ करते हैं और जो फार है उसको तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस और फार में याद रखना है, जब नाम आएगा तो फिर आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, जब कोई तादाद आएगी तो फिर आपने फार का इस्तेमाल करना है, जब क्लॉक आएगा तो फिर सिंस, जब आवर्स आएगा तो फिर आपने फार। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है 114 पेज है, इसका 5 और 6 नंबर है। शी हैज़ बीन प्लेइंग डैश फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम, तो येगा फॉर लॉन्ग टाइम आएगा। लास्ट वन है ही हैज़ बीन लिविंग इन पिशावर डैश ही लेफ्ट स्कूल, तो यह आएगा सिंस। अब देखिए जब पिशावर नाम है ना तो पिशावर के साथ में सिंस आएगा। दोबारा से बता दें कि जब सिंस या फार का इस्तेमाल करना है आपने, तो आपने हमेशा याद रखना है जब नाम आएगा तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, जब तादाद आएगी तो फिर आपने फार का इस्तेमाल करना है। बेटा ये आपका यूनिट नंबर जो 9 था कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।